Hi sir, am I audible? आवाज आ हेलो रही? हाय हाँ Good, good. आवाज आ रही है। Thanks a lot for agreeing to doing this, man. क्योंकि नो 2 महीने से I've been chasing people and कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कभी कोई लोग रिलक्टेंट हैं करने के लिए. Some people have not moved on. तो फिर with that phase of life यूपीएससी वाला, तो फिर जैसे मेरे कॉलेज या मेरे से थोड़े जूनियर, तो वो उस फेज में है कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू कम ऑन द कैमरा एंड शेयर कि क्या जर्नी रही है वो. सो right, that happens. And like when you start working and all, then time is also difficult. मतलब मुश्किल होता है टाइम निकालना काफी, क्योंकि in the weekdays you are doing mostly working, and weekends वगैरह पे it's usually friends and family and all of those things which kind of take preference. So it's very difficult to set out time for an initiative. But yeah, I mean, I felt like taking out time because this is something which is a very challenging thing to overcome, and I have known people who have found it challenging to overcome this and to get on track with another different career, or like take up a job or something like that. So I mean, I wanted to do whatever I can to help out people who are in a similar position. So spending an hour recording a video is not a very challenging thing to do. तो चलता है अब कोई थैंक ऐसा यू सो मच. अभी चलिए। मैंने सकर से बात करी थी, तो भी ही वाज आल्सो लाइक, सुपानदेव को कन्विंस करना कुड बी अ लिटिल ट्रिकी, बट इट वाज एक्चुअली द इजीएस्ट एज ऑफ नाउ. नहीं, it's not convince karna which is the tricky part. It's the part after that which is actually sitting and doing this, because uh like if I'm sold on an idea, I'm sold on it. I don't mind doing it. But the problem is that sometimes there's just so many pushbacks, because like I'm almost turning 30 now, man. And I've been working for all 5.5 years, 6 years ka experience hone wala hai mera pura. And I'm married also, so I got a family, and parents are also getting old, so उसी में टाइम सारा निकल जाता है. So there are often so many pushbacks कि दूसरा बंदा फिर थोड़ा अनॉय हो जाता है कि यार इतनी बार पुशबैक क्यों हो रहा है. लाइक इवन टुडे वी फाइनली स्टार्टेड लाइक 40 minutes आफ्टर द शेड्यूल टाइम. सो it's just these pushbacks get a little tricky, and I found it good that you did not mind them, because like I think you want to do this. So yeah, happy to be here. ठीक है, मैं एक बारी, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वीडियो, आई एक बारी एक्सप्लेन की व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस चैनल. तो Yeah. बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, अभी आपको नाम पता नहीं होगा, द नेम इज प्लान बी टू जी. सो फॉर हाँ. पीपल Yeah. जिनका प्लान ए, हाँ हाँ, तो फॉर पीपल जिनका प्लान ए काम नहीं किया, फॉर देम देयर आर प्लान बी सी डी से लेके जेड तक, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द वर्ल्ड. तो उस हिसाब से, सो द मेन पर्पस इज की आई वांट टू ब्रिंग the so-called failure to move on to success stories of government exam aspirants. एंड क्योंकि सक्सेस स्टोरीज तो बहुत आती है इंटरव्यूज, जैसे कोई हम्म. पेपर खत्म होता है, जैसे रिजल्ट्स आते हैं, भरमार हो जाती है, बट वो हम्म. प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस इतना कम है, और फेलियर की वीडियोस नहीं आती, मतलब फेलियर, सो कॉल्ड फेलियर की वीडियोस नहीं आती. मेरे को ये ना फेलियर और सक्सेस जो वर्ड्स है ना, आई डोंट लाइक दीज वर्ड्स. मतलब ये ट्रू. एक्चुअली बिकॉज ये ना, दीज आर ऑल सोसाइटी परपेचुएटेड ideas, and we are also part of that society. No, there's no point pretending कि हम उससे बाहर हैं. मतलब हम उसका पार्ट है. हम ही खुद ही इन स्टीरियोटाइप्स में उलझे रहते हैं, एंड ये स्टीरियोटाइप्स फिर और ग्रो करते रहते हैं. तो ये सक्सेस और फेलियर कुछ नहीं होता. In a larger term, larger context, success and failure in the exam, yes, I mean, failure in the exam is to not be able to pass it and become and get a rank and become whatever officer in whatever service you want. And failure and success in the exam is getting there and getting a rank and becoming an officer in whatever service you want to join. Again, उसमें भी ना there is a gray area, because success में क्या होता है कि आपको रैंक आ गया, आपने एग्जाम तो टेक्निकली क्लियर कर लिया है, बट आपको सर्विस नहीं मिला अपने चॉइस का. तो देन everyone wants to go a step further, right? So वो भी success is not success technically, right? So वो भी लोग at least बोलते हैं not. कि एन आईपीएस इज अ फेल्ड आईएएस. हाँ. लोग तो इसलिए सोचने को तो वो भी ये चीजें ना, मतलब we should leave these things aside when we talk about like real practical things like career options or job opportunities or plans or strategies, because plans and strategies and opportunities cannot be thought upon the same fabric, right? मतलब उन जो सेम लैंग्वेज के साथ उनके बारे में आप नहीं सोच सकते. तो पहला तो स्टेप ही यही होता है कि ये सक्सेस फेलियर का जो डेफिनेशन है ना, इसको जस्ट ड्रॉप इट एंड जस्ट, like, you know, like, focus on the things that you can control. 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 Just
get things on ground running, right? वही सबसे बड़ा सोसाइटी इतना वो कर देता है ना आपके ऊपर ओवर पीरियड ऑफ टाइम. So नहीं, it's real it really because it's very real to lose touch of reality when you prepare for the exam, right? Because like you are actually not dealing with very real kind of decisions making, or like things which people are dealing in their everyday lives. Like for example, किसी के भी लाइफ में कोई इवेंट होता है तो देर इज लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व विद इट, देर इज लाइक उसके साथ फाइनेंशियल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व होती हैं, उसके साथ उसमें कई डायनामिक्स होते हैं, सोशल इंटरेक्शंस होते हैं. बट टेक्निकली आप एग्जाम की पढ़ाई कर रहे होते हो तो आप इस सब दुनिया से दूर होते हो. तो ये तो पर्सनल इवेंट की बात हो गई. प्रोफेशनल इकोसिस्टम में और चीजें कॉम्प्लेक्स होती हैं. आपको मल्टीपल स्टेक होल्डर्स से इंटरैक्ट करना होता है, आपको एफिशिएंटली कम्युनिकेट करना होता है अपने पॉइंट को, आपको ये तो इंश्योर करना ही होता है कि आप अपना काम ढंग से कर रहे हो और डिलीवर कर रहे हो. तो वो तो एक इन इट सेल्फ चैलेंजिंग चीज होती है. तो इसलिए ये इट्स जस्ट लाइक you when you lose touch with all of these things, right? Because you are focusing on studying and studying for that exam, and there's nothing wrong in it because you are doing a focused effort. आप फोकस करके उस एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो. तो थोड़ा बहुत आपका जो है वो रियल प्रैक्टिकल चीजों से टच तो लूज हो जाता है, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एकदम से आप ओवरनाइट उस फेज को ड्रॉप करके और बिल्कुल वर्क मोड में आ जाओ. इनफैक्ट आपके पास वोकैबुलरी नहीं होती उसमें आने की ना, आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, तो आप शुरू कहाँ से करोगे उसमें मतलब कुछ करना. तो एंड स्पेशली इफ यू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम, 3 years 4 years, अगेन दिस डज नॉट नीड टू बी टेकन लाइक आई एम सेइंग कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स जब एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कुछ रियल चीज नहीं कर रहे. रियल से मेरा मतलब प्रैक्टिकल है. आई मीन टू से प्रैक्टिकल स्टफ, बिकॉज obviously like in terms of interacting with people, in terms of doing a constructive स्मॉल टास्क. यूपीएससी में क्या होता है कि एक साल में एक बार एग्जाम होता है और फिर अगले साल तक उसका रिजल्ट आता है, फिर दूसरा एग्जाम होता है. तो क्या है ना कि माइक्रो टास्क में डिवाइड करके चीजें करने का और उन टास्क के लिए रिकग्नाइज होने का और उनका वैलिडेशन मिलने का जो सारा काम है ना, वो सब एक बहुत लंबे ड्यूरेशन पे स्ट्रेच्ड आउट होता है. तो जॉब वगैरह में उल्टा होता है. जॉब में मेरे को ना हर घंटे when I'm working, I have to make sure that I'm delivering what is expected every hour. And if I deliver what is expected from me every hour, then I will get recognized for it every hour. मतलब this is obviously again I'm not saying this theoretically, right? Like अगर मेरे को आज टास्क डिलीवर करना है और मुझे एक क्लियर टास्क मिला हुआ है और उसमें मेरे को एक्सपेक्टेड है कि मेरे से सर्टेन टाइम में डिलीवर हो जाएगा, तो मेरे को उस चीज को अगर मैं डिलीवर करूंगा और अच्छे से करूंगा तो मुझे रिकग्निशन मिलेगा उस चीज का. यूपीएससी में वो नहीं मिलता. तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रेपरेशन करते हुए कुछ रियल नहीं करते. आप प्रेपरेशन करते हुए यू आर मोस्टली डीलिंग विद आइडियाज. यू नॉट आपका जब आप वो एग्जाम लिख रहे हो जाके तब आपका आइडियाज गेट कन्वर्टेड टू प्रैक्टिकल थिंग्स, राइट? बट देन रियल लाइफ में यू आर डूइंग प्रैक्टिकल थिंग्स डे इन डे आउट. मतलब आपको उससे ब्रेक ही नहीं मिलता. यू डोंट गेट अ ब्रेक फ्रॉम दैट प्रैक्टिकलिटी, राइट? इनफैक्ट टू डू समथिंग abstract like read a book or watch a show or something like that, you need to actually take out time for that, है ना? तो वो होता है. तो इसलिए ये तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता ही है मतलब डेफिनेटली. बट देयर आर वेज व्हिच यू कैन यूज टू एक्चुअली ओवरकम दिस, which is what we can talk about धीरे धीरे करके. we'll have to discuss that in today's session. Yeah. So coming back to my point, so the first thing was I want to bring those stories on this podcast. The second point is to make people aware of the opportunities that are there around. लोगों को पता ही नहीं होता है, स्पेशली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में. तो जो लोग, हम तो फिर भी टीयर 1 सिटीज में अच्छे कॉलेज से पढ़ के, तो हमारे आसपास रेफरेंसेस होते हैं बहुत सारे. लोगों को पता ही नहीं होता कि अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट क्या करती हैं मार्केट में. एंड द थर्ड थिंग इज कि जो ऑलरेडी उस फेज से गुजर के पीपल हैव मूव्ड ऑन एंड कुछ बढ़िया कर रहे हैं, उन्हीं के थ्रू वो गाइडेंस या मेंटरशिप, नॉट मेंटरशिप बट एटलीस्ट इस पॉडकास्ट में मे बी 1-to-1 एक पॉइंटर्स में बता सकते हैं कि वो insights. Insights, exactly. Insights. So maybe you can just take us through your journey, maybe as a school, college में क्या किया, and then why did you want to get into this UPSC wala journey, and then what all happened? Yeah, you have a very nice name. You've got Plan B to Z as the name of this thing, right? This initiative that you're doing. So to start, let me first share that like UPSC was never my plan A. मतलब मेरा वो plan A कभी था नहीं. मतलब so what happened was that मैं बचपन से I've been very fond of computer. मतलब the computer science and
कंप्यूटर्स से ऑब्सेस्ड हूँ मैं, मतलब ना मैं गीक दैट वे, मतलब मेरे को हमें बचपन में बड़ा अच्छा लगता था कंप्यूटर पे काम करना और चीज़ें करना, एक्सपेरिमेंट करना। तो मैं उस सब में काफ़ी था, मतलब ना। सो बिकॉज माई सिस्टर इज लाइक 9 years elder टू मी, सो शी हैड कंप्यूटर्स इन 11th 12th। तो तब नया नया कंप्यूटर लगा था, एंड मैं 4 साल का था तब, है ना। तो इसलिए वो मुझे तो क्या कहते हैं, बड़ा फैसिनेटिंग लगा कि अच्छा कंप्यूटर आ गया है। तो इंस्टॉल वगैरह करते थे तो मैं खेलता वेलता था उसके साथ। सो हमारे दिल्ली के स्कूल्स में देयर यूज्ड टू बी दिस थिंग कॉल्ड द टेक सर्किट। तो उसमें क्या होता था उस टाइम पे ना, स्कूल्स में इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, जिसके अंदर आपका ये सारे इवेंट्स होते थे ना, प्रोग्रामिंग और ये वेब डिजाइनिंग और इस टाइप की चीजें, फोटोशॉप वगैरह वगैरह के टाइप के इवेंट्स होते थे। तो मैं आई यूज टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन दैट, एंड उसमें कॉम्पीट वगैरह करता था। आई यूज टू विन अ लॉट ऑल्सो। तो आई एम फ्रॉम डीपीएस द्वारका, विच इज डीपीएस इन दिल्ली, द्वारका इन द्वारका दिल्ली, सो दैट्स वेयर आई एम फ्रॉम। सो वहाँ से हूँ मैं। सो आई यूज टू पार्टिसिपेट इन दैट, एंड वो सब करते करते ही मतलब मेरा 11th 12th वगैरह, फिर उसमें ही जो है वो लीडरशिप एंड पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट, वो सब वो तो सबका चस्का बड़ा था हमारे ना, हमारे स्कूल टाइम में वो सब काफी चलता था कि मतलब हमें, मुझे प्रेसिडेंट बनना है, तू वाइस प्रेसिडेंट है, ये सेक्रेटरी है, ये सब वो सब। तो देन दैट कैरिड, कॉलेज। then like obviously like when I took the entrances and all, and फिर डीटीयू हो गया। तो डीटीयू में फिर कंप्यूटर साइंस मिल गई, तो कंप्यूटर साइंस ही लेनी थी क्योंकि बचपन से कंप्यूटर्स के साथ खेल रहे थे। तो वो सब हुआ। फिर डीटीयू में ज्वाइन करने के बाद 1 2 साल तो मैंने वही किया, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह टाइप की चीजें ही करी, मतलब कोड वोड लिखा, 2 3 इंटर्नशिप्स करी, बढ़िया, अच्छे मजेदार एकदम। मुझे बचपन से अच्छा लगता था, मतलब कोड लिखना, वो सब चीजें करना, ठीक है। तो तब तो इतने रिसोर्सेज वगैरह होते भी नहीं थे, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेन स्ट्रीम भी नहीं होता था इतना, बट आई यूज टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। फिर पता नहीं सेकंड ईयर के जब एंड में मैं अपना समर वेकेशन के लिए गया, तो डैड ने मुझे बोला कि ये यूपीएससी भी कंसिडर कर सकते हो। मैंने कहा क्या होता है ये, मतलब। तो मतलब मेरे को पता था कि ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, बट मेरे को इतना एक्सपोजर नहीं था पूरी चीज़ का, मतलब कि क्या है, क्या पूरा डोमेन है, क्या है, सब चीज़ें। तो मैंने पूछा ये डिटेल में, फिर उन्होंने बताया। फिर मेरे को कंप्यूटर में एक और चीज़ करना बड़ा अच्छा लगता था, यूज टू ऑलवेज रिसर्च, मतलब मैं गूगल करता था, विकिपीडिया वगैरह पे काफ़ी टाइम स्पेंड करता था चीज़ें पढ़ते हुए। सो आई हैव बीन इंक्विजिटिव दैट वेज। तो फिर वो मैंने किया, और मतलब आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि अरे ओ ये सब लाइक स्कूल के सारे सब्जेक्ट्स जो बचपन में एसएसटी अच्छा लगता था, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बुरी लगती हो। बट देन उसमें प्रॉब्लम यही होती थी कि करनी हमेशा वही थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, क्योंकि इंजीनियरिंग करनी थी तो उस टाइम पे, तो फिर मतलब फिजिक्स हिस्ट्री विस्ट्री थोड़ा बैकफुट पे चले जाते थे। बट इंटरेस्टिंग हमेशा अच्छे लगते थे सब्जेक्ट्स ना, मतलब रियलिस्टिक होते थे, पता होती थी कुछ चीजें जो घर पे हो रही हैं उनसे रिलेट कर सकते हो। तो देन आई वाज राइट अबाउट इट, एंड आई वाज लाइक सिलेबस सारा ये है वो है। तो देन आई स्टार्टेड अटेंडिंग सम कोचिंग ऑल्सो, काइंड ऑफ वार्म अप, मतलब ऐसे प्रॉपर नहीं अटेंड करता था उस टाइम पे, थोड़ा ऐसे ज्वाइन कर लिया था ताकि थोड़ा एक्सपोजर मिल जाए। राउज होता था ना 12 नंबर रोड पे, राउज आई है स्टडी सर्कल, वो ज्वाइन किया था थर्ड ईयर में। तो उस टाइम पे फिर वो किया, फिर उस टाइम पे थर्ड ईयर में डिसाइड किया कि कैंपस इलेक्शंस भी कंटेस्ट करने हैं। तो वो भी सब वो बिल्कुल स्विच हो गया, मतलब ना एकदम थर्ड ईयर में ना, एकदम इट जस्ट चेंज्ड। एंड कैंपस इलेक्शंस भी जीत गया सरप्राइजिंगली, मतलब मेरे को खुद ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा, बट आई वन। एंड देन आई वांट आल्सो वांटेड टू डू सम गुड वर्क, तो वो किया 1 1.5 साल 2 साल, एंड देन गॉट अ पीपीओ एट डेलॉइट। वो भी कुछ खास मतलब ऐसे नहीं था, मतलब मैं नॉन टेक उस टाइम तक, फिर मेरे को हो गया था कि अब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करनी। सो आई डिड अ कंप्लीट स्विच कि एकदम, मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से चेंज करके उसकी मेरे को यूपीएससी करना है, मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करनी, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया बिल्कुल। और उस टाइम पे फिर जब लोग पढ़ाई कर रहे थे और डेवलपमेंट करना शुरू कर रहे थे ताकि वो Amazon, गूगल, इस टाइप, अडोबी, इस टाइप की कंपनीज में प्लेसमेंट्स ले सके, तब मैं पूरा हाथ वाथ छोड़ के खुले खुले छोड़ के बैठा हुआ था कि मैं तो देखूंगा भाई, मेरे को तो यूपीएससी करना है। फिर मैंने नॉन टेक कंपनी में अप्लाई कर दिया, जो कि टेक्निकली नॉन टेक रोल नहीं है, बट वो बीटीए रोल होता है, वो आईटी कंसल्टिंग वाला रोल होता है डिलॉयट में ना। तो वहाँ ज्वाइन किया मैंने। तो थोड़ा कुछ खास मजा नहीं आया थोड़े टाइम में, फिर क्योंकि देना भी यूपीएससी था, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है चलो, एक कितना अटेम्प्ट दिया समय मैंने। किया था आपने जॉब डिलॉयट? हाँ, डिलॉयट में कितने समय थे आप? 3 3 4 महीने, फोर अच्छा। मंथ्स हाँ ऐसे निकल गया, ज्वाइन किया था बस। मैं डैड वाज लाइक कि ज्वाइन करके देख लो एंड छोड़ देना, फिर एक अटेम्प्ट देके, अगर डिसाइड, एक अटेम्प्ट दे लो यूपीएससी का, अगर डिसाइड करा कि यही करना है तो छोड़ देना। तो देन आई जो छोड़ा मैंने, आई ज्वाइंड, आई टुक 1 अटेम्प्ट एंड आई लेफ्ट। तो एक अटेम्प्ट जो मैंने दिया था वो फर्स्ट वाला, वो डिसेंट चला गया, मतलब लाइक आई मीन ऑब्वियसली क्लियर नहीं हुआ, बट वो अनऑफिशियल आंसर कीज वगैरह जो आती रहती हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ही सही मिस हुआ, मतलब ना 8 10 पॉइंट, जो कि ज्यादा नहीं था, स्पेशली गिवन कि मतलब पढ़ाई कुछ खास करी नहीं थी, तो इसलिए। तो फिर देन आई वाज लाइक कि एक बार तो प्रॉपर्ली देते हैं। फिर दूसरा अटेम्प्ट अच्छे से दिया प्रॉपरली, 2017 का अटेम्प्ट जो दिया था, उसमें प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस लिखा।
मेंस लिखने का एक्सपीरियंस भी अच्छा था, मतलब आई एंजॉयड डूइंग दैट। एंड देन ऑब्वियसली कुछ पेपर्स में मेंस में प्रिपरेशन वाज नॉट अप टू द मार्क, वो होता ही है बिकॉज लाइक इतना कम टाइम होता है एंड आप कुछ देन यू फोकस ऑन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड कुछ कुछ रह जाते हैं। तो फनी थिंग इज कि जिन पेपर्स में प्रिपरेशन वाज नॉट गुड, उन्हीं में स्कोर वाज नॉट गुड एज वेल। जिनमें प्रिपरेशन ठीक थी और स्ट्रॉन्ग था उसमें डिसेंटली अच्छा स्कोर था, मतलब तो वो था। बट देन काफी थक गया था, मतलब ना पढ़ते पढ़ते, लाइक क्योंकि एक्चुअली पढ़ते पढ़ते नहीं थका था, पढ़ते हुए आई यूज्ड टू आल्सो पढ़, व्हाइल रीडिंग आई वाज वेरी एनामर्ड बिकॉज मैं काफी क्यूरियस था, मेरे को काफी अच्छा लगा पढ़ के चीजें, एंड सारी चीजें फिर से पढ़ी है। तो देन आई वाज मोस्टली आल्सो लाइक आसपास की रीडिंग भी कर रहा था, जैसे काफी चीजें खुल गई ना, दिमाग एकदम ओपन अप हो गया, मतलब चीजें पता चली कि आसपास क्या होती है, मतलब लिटरेचर क्या होता है, और भी चीजें मतलब जो यूजुअली इतना डिटेल में पढ़ी नहीं थी। इकोनॉमिक्स फाइनेंस की तरफ एक पूरा नया पर्सपेक्टिव ओपन हुआ, बिजनेस की तरफ एक पर्सपेक्टिव ओपन हुआ, इवन कोर फिजिक्स वगैरह टाइप के सब्जेक्ट्स भी बेटर समझ में आए। फिर फिलोसफी अटक गई बीच में, तो बस सबको पता ही है वो कितना बढ़िया मजा आता है वो पढ़ के, मतलब तो फिलोसफी तो एंडलेस है, मतलब एंड तो बेसिकली सारा ना स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज वगैरह समझ में आना शुरू हो गया। तो वो चीज़ बचपन से हमेशा अच्छी लगी, क्योंकि मतलब हमेशा मैं जैसे मतलब कुछ नॉलेज सीख करने के बारे में काफी क्यूरियस होता था, बट आई नेवर यूज्ड टू नो हाउ दिस entire tree worked, you know, it's a tree at the end of the day, right? मतलब it's just a tree of words, right? मतलब वही है ना, तो वो सब चीजें पता चली। तो काफी रीडिंग वगैरह, एक्स्ट्रा रीडिंग वगैरह भी काफी करी, मतलब नॉन फिक्शन बुक्स वगैरह बहुत पढ़ी उस टाइम पे। ये सारे जो बेस्ट सेलर्स, डैनियल कैनेमैन, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, पावर ऑफ हैबिट, थोड़ा एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, थोड़ा फिलोसफी, फिर तो वो सब वो काफी पढ़ा। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है, मजा आया फिर काफी। थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ, तो फिर थोड़ा दर्द हो गया, मतलब फिर आई वाज लाइक कि अब और कुछ कर नहीं रहा हूँ, और मतलब घर पे बैठा हुआ हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब तीसरा अटेम्प्ट जो कि क्लियर होना चाहिए था और पॉसिबली मेंस भी क्लियर होना चाहिए था, वो उसमें प्रीलिम ही क्लियर नहीं हुआ। तो देन आई वाज लाइक कि अब एक साल और कैसे, टाइम में तो इम्पेशेंट हो गया ना, मतलब कुछ हो ही नहीं, देयर इज नथिंग इन माय लाइफ व्हिच इज कन्वर्टिंग टू अ पॉजिटिव आउटकम, राइट? सो फिर देन आई डिसाइडेड कि आई एम गोना मूव आउट ऑफ दिस, क्योंकि तब तक फिर ये जो करियर है और इसमें जो रोल्स हैं और इसमें जो चैलेंजेस हैं और इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, वो सब चीजें भी पता चलनी शुरू। पहले तो क्या था, जब पहला स्विच मारा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से यहाँ पे, तब तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेकार लगने लगी थी और ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं था। फिर 4 साल बाद, फास्ट फॉरवर्ड 4 इयर्स, 2014 से 18 पे पहुंच जाओ, तब तक फिर ये अच्छी भी नहीं लग रही थी, मतलब ये भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि आई वाज लाइक कि मतलब अच्छा खुला हाथ तो इससे भी नहीं मिलेगा, टू क्रिएटिव डू क्रिएटिव थिंग्स, या मतलब मेरे को हमेशा से क्रिएटिव चीज करना अच्छा लगता है, मतलब क्योंकि बोरिंग चीज का एक लिमिट होता है ना, मतलब आप कितना ही कर लोगे उसको, तो अल्टीमेटली आपको अपना जॉब से, अपने काम से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, और उसमें कुछ क्रिएटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो इसलिए इस ऐसा नहीं कह रहा मैं कि इसमें कोई क्रिएटिव एलिमेंट नहीं होता, बहुत क्रिएटिव एलिमेंट होता है, बट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शंस, एंड वो भी मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ना, तो वो चीज भी अपनी तरीके से चैलेंजिंग होती है। पहले ये चीज दिखती नहीं थी, पता नहीं थी, मतलब ना कि उसमें लग रहा था कि सब चीज रोज ही लग रही थी कि अरे वाह, ये गवर्नमेंट सर्विस और ये वो सब। बाद में 4 साल बाद फिर वो इतना क्लैरिटी के साथ ऐसा नहीं लग रहा था कि ये चाहिए। तो जहां तक ये बात है कि ये सोचने की कि मैं फेल हो गया इस पे, अब मैं क्या करूंगा, वो मैंने एक दिन भी नहीं सोचा, क्योंकि मैंने नेक्स्ट चीज पकड़ी कि यार अब ये किया जा सकता है, ये मैं शुरू कर देता हूँ। फनी बात ये है कि जब तक मैं रियलिटी के साथ टच की बात कर रहा था ना, जब तक मैं 2018 में डिसाइड किया कि मैंने ये नहीं करना, तब तक मैं ये भूल चुका था कि मैं डिसेंटली अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता था। मतलब ये मेरे दिमाग में नेचुरली आनी चाहिए थी बात कि आई वाज अ डिसेंट engineer and I used to know how to write code when other people did not even understand things, basic things about it. तो बट ये नेचुरली नहीं आया मेरे दिमाग में ना कि अच्छा अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वापस चलते हैं। समहाउ इट जस्ट ऑल फेल्ट सो डिस्टेंट, एंड अगेन इट आल्सो फेल्ट कि मैं तो पता नहीं पहले डेवलपमेंट करता था, 4 साल में कितना चेंज हो गया है, एंड पता नहीं उसके साथ कोप अप कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सो वो माइंडसेट वैसा हो जाता है ना, बिकॉज जब आप, तो ऐसा नहीं होता कि आपको आपको चैलेंजेस सिर्फ तब फेस होंगे जब आपको सोशली लोग पॉइंट करके बेफ बोलेंगे कि आप फेलियर हो। ऐसा बोलते भी नहीं है लोग, इतना इतना ऐसा इतना कहाँ होता है कि कोई आपको जलील करेगा उस चीज के लिए। जब ऑब्वियसली आप बहुत मुश्किल चीज कर रहे हो तो कोई आपको मुंह पे फेलियर तो नहीं बोलेगा। प्रॉब्लम उस माइंडसेट का होता है जो आपको लगता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव नॉट सक्सीडेड एट द एग्जाम, तो वो उसका मेन चैलेंज होता है। एंड वो चीज फिर आई हैड अ वर्ड विद माय फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज एंड माय सर्कल, तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा चलो अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह देखना शुरू करो भाई, तुम तो ठीक करते थे। तो देन आई वाज लाइक कि ओके दैट मेक्स सेंस। मैं तो सेल्स वेल्स की नौकरी ढूंढ रहा था, बीडी वीडी में, बीडी कहाँ से कॉल करने लगूंगा एकदम से। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करनी चाहिए।
And then obviously there were no entry points because मतलब जो हम एक्सपीरियंस भी नहीं था, एंड मतलब उस टाइम पे ये सारे प्रेपरेशन गाइड्स, प्रेपरेशन मटेरियल्स वर आल्सो इतना थे, ऐसा नहीं था कि नहीं थे, बट दे वर पैची, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आउट इन पब्लिक डोमेन थे। जैसे व्हेन यू टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो पिछले 3-4 साल में हाउ टू बिल्ड अ करियर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैज बिकम वेरी पॉपुलर, राइट, इन टर्म्स ऑफ अ सब्जेक्ट इन so on social media, and there's a lot of content on that, and a lot of people are doing that. उस टाइम पे इतना नहीं होता था, तो वो फिर then I got an entry back. Then I decided कि I'm gonna get back, and obviously ऐसा तो है नहीं कि open positions बहुत हैं क्योंकि experience ही नहीं है, and मतलब I'm also like ऐसा भी नहीं है ना कि fresh graduate हूँ, मतलब तो I'm competing against people across 2-3 years, मतलब ना, तो इसलिए एकदम से वो था, but thankfully like I went through my network, and there were people at some places which were strategically at a point where they could hire someone like me, and they did. And that's what always happens, मतलब ऐसे ही होता है, your re-entry is always going to be like that. You go through your network, जो आपका connections हैं आपके आपके स्कूल के, कॉलेज के, अगर वो नहीं है तो अब आप उनको सोशल मीडिया पे बना सकते हो। मेरे मेरे लिंक्डइन पे ऑलमोस्ट 550-600 ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, बट पीपल हु आर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट लोकेशंस, एंड परसुइंग द सेम थिंग, बट मैंने उनको ऐड किया हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली मतलब दे वांट टू रीच आउट फॉर हेल्प, एंड दे वांट टू कनेक्ट, व्हाई शुड आई से नो? तो देन दे कीप रीचिंग आउट, एंड आई कीप टेलिंग देम अबाउट व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज आर देयर एट माय कंपनी एंड अदर कंपनीज आल्सो। तो you can build a network, and then you find that one of few roles which are like at a place and which is strategically at a point where you can start working, right? And then obviously like there are both things, right? What do you want to do, वो एक डाउट होता है। मेरे केस में वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, बिकॉज चैलेंज सिर्फ उतना था कि मुझे याद नहीं था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर सकता हूँ, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता अगर वो इनपुट ठीक टाइम पे मेरे पास नहीं आता। बट आई वाज लकी इनफ कि आई टॉक टू पीपल एंड दे टुक मी बैक देयर, एंड उसके बाद ये चैलेंज नहीं था कि मैं दूसरी चीज क्या करूं, बिकॉज वंस इट वाज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देन इट वाज क्लियर कि अच्छा आई कैन गेट बैक टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। किसी के लिए वो चीज ज्यादा बड़ी चैलेंज हो सकती है, जो जिसको ये चीज पता नहीं है ना कि वो और क्या कर सकता है, या वो और क्या करना एंजॉय करता है, उसको अच्छा लगता है, या उसमें वो स्किल्ड है, उसके लिए वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बट अगेन, you should use the exposure that UPSC has given you to the overall working of the world to find that answer. बिकॉज आप यूपीएससी की जब पढ़ाई करते हो तो आपको बहुत चीजों की अवेयरनेस हो जाती है, तो आप उस अवेयरनेस को एक्चुअली जब आप प्रैक्टिकल यूज पे अप्लाई करना शुरू करोगे, तो फाइंडिंग आउट दैट आंसर विल नॉट बी वेरी टफ कि मेरे को क्या करना अच्छा लगता है। देर आर टेस्ट लाइक पर्सनैलिटी टाइप इंडिकेटर्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स विच फाइंड आउट कि आपके क्या पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड यू कैन एक्सप्लोर करियर्स वेयर दोज पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूव टू बी स्ट्रेंथ्स, वो सब चीजें भी होती हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स that are coming out on these career development and all lines. Again, it can also be something like completely gut feeling, right? Something that you find interesting. Like there are people who are generally very interactive and extroverted, right? People like that will do very well at operations, right? जो एक field है मतलब which is a पूरा domain है in itself, right? मतलब again there will be people who know the fact that they are good with numbers. For some people it will not be clear कि अच्छा I am so good with numbers or I'm so good with finance or math. वो but then people will be very clear कि अच्छा मेरे को numbers अच्छे लगते हैं. तो if they know that, then they can choose that kind of a domain. You can always do an MBA and find the next thing that works out for you, right? That can be another alternative way, because अगर आपको ये लगता है कि आपको career immediately नहीं start करना, and you don't want to immediately start working, and because you just don't know what you want to do, then an MBA is a course for that, right? MBA का काम वही है कि आपको जो है वो general holistic आपको जो है professional वो दे के, आपको approach दे के, समझा के, वो they leave you up to figure out what do you want to do with that, right? तो आप वो explore कर सकते हो। अगर आपको क्लियर हो गया है कि आपको कौन सी डोमेन में काम करना है, आपको किस चीज से शुरू करना है, अगेन मतलब दिस इज समथिंग दैट यू कैन चेंज, बिकॉज अगर आपने 2-3 साल काम किया फिर एमबीए किया तो हो सकता है वो उसके बाद चेंज हो जाए, राइट? सो इट्स नॉट सेट इन स्टोन। मतलब एलाइड प्रोफेशंस और एलाइड करियर पाथ्स, अब हमारी इकोनॉमी इतनी डाइवर्सिफाई हो गई है और इतनी जॉब्स हैं यहाँ पे कि आप वो एक्सप्लोर करते रह सकते हैं, है ना? कभी कभार वो अपॉर्चुनिटीज अपने आप क्रिएट हो जाती है। तो मेजर चैलेंज आपका ये है कि आप घुसो उसमें, राइट, जो आपको करना है, एंड यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू। फॉर दैट यू नीड टू फिगर आउट कि आपको क्या अच्छा लगता है एंड आप क्या अच्छा करते हो, एंड आप वो करने के बाद then the next thing is obviously getting in, which is something which the one of the best strategies that will work in that on that front is to build a network if you don't have one, and then find the opportunity where the opportunity and your
योर स्किल्स दे अलाइन विद ईच अदर, मतलब वो चीज़ करनी है। अभी इसके बाद एक बार और री इन्वेंट किया मैंने अपने आप को, वैसे नौकरी स्टार्ट करने के बाद बीच में मैंने स्टार्टअप भी करने की कोशिश करी थी, तो वो एक बीच में मैंने और 6 मंथ्स 7-8 मंथ्स का ब्रेक लिया था। हालांकि जो हम काम कर रहे थे वो पीओसी वर्दी था, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा क्लोज कर दिया थोड़े टाइम बाद, ऑपरेशन शट डाउन कर दिया। तो बट वो एक और री इन्वेंशन किया था, मतलब तो बेसिकली मैंने अपने 20s में आई हैव री इन्वेंटेड एंड रीस्ट्रक्चर्ड व्हाट आई एम डूइंग 3 टाइम्स बेसिकली। तो मतलब ये चीज एक चीज है, ये हेल्प करती है ये ये चीज तो ना चलता आपको नहीं है, आपको क्या लगता है चलता नहीं रहेगा? अभी आपको क्या लगता है कि इन योर नहीं, 30 यू चलता थिंक? रहेगा, नहीं, चलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चलेगा, बट इसका ना अब उम्र के साथ ना इसका डिग्री ऑफ इम्पैक्ट लिमिटेड हो जाता है, मतलब ना लाइक एज इन कि आप कितनी चीजों को इम्पैक्ट कर सकते हो, वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम तो हो ही जाती है ना यार। मतलब अब नाउ आई हैव my parents are old, I have my wife is she's also with me, right, she's living with me, तो वो dependent है मेरे पे, and then ये सारी चीजें होती हैं, तो इसलिए इतना इजी नहीं होता कि आप छोड़ के एकदम से कुछ और करने लगो, मतलब स्पेशली नॉट एज यू एज एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दोज टिक मार्क्स दैट पीपल हैव इन देयर लाइव्स, वो अगेन इट वेरीज फॉर एवरीवन, मतलब हर किसी के लिए इतना सेम सिमिलर नहीं होता। अगर कोई डिसाइड करेगा कि मुझे अपने पेरेंट्स से दूर रह के अपना करियर पे फोकस करना है, स्लैश कोई डिसाइड करेगा कि मुझे नहीं करनी शादी या आई डोंट वांट टू हैव अ फैमिली, तो उसके लिए वो इतना चैलेंजिंग नहीं होगा। अगेन उस चीज के कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, तो वो दैट इज देयर, बट इन जनरल ही आपके लिए री इन्वेंट करना इतना इजी नहीं रहता एज यू मूव ग्रो इन सीनियोरिटी इन योर करियर एंड इन एज एज वेल। वो चीज थोड़ी, मतलब उसमें आप कितना लेवरेज ले सकते हो वो कम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट यू द अमाउंट ऑफ लेवरेज दैट यू कैन टेक गेट्स रिड्यूस। क्योंकि पहले अगर मुझे री इन्वेंट करना होता अपने आप को, तो मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अब मुझे 3-4 चीजें तो एटलीस्ट और सोचनी है, मतलब ना। एक चीज और होती है, जब आप काम करते रहते हो, इतने टाइम से काम कर रहे हो, 5 5 5 5 6 साल से, और इतनी चीजें हो गई हैं, आपने कर ली हैं, तो आप एक ऐसी पॉइंट पे पहुंच चुके हो जहाँ पे चीजें ना आपके लिए ऑटोमेटिकली चलती रहती है, कुछ चीजों के बारे में आपको थोड़ा स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता, जैसे आपकी अपनी स्पेस, आपके एसेट्स, आपका कुछ एक फाइनेंशियल कॉर्पस जो आपने करके यू हैव असेंबल्ड, वो सारी चीजों के लिए आपको जो है यू डू नॉट नीड टू टेक एज मच स्ट्रेस जितना आपको तब लेना पड़ता है जब आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हो। तो फिर वो ना एकदम से आपको ये भी मन नहीं करता कि उन सारी चीजों को बिल्कुल डिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए, मतलब कि चलो कहीं और चल के नए सिरे से जिंदगी शुरू करते हैं, तो इट डजंट हैपन लाइक दैट। हो सकता है, डिपेंड्स ऑन व्हेन यू आर टेकिंग दैट डिसीजन, आपके उस टाइम पे क्या आपके आपके आपसे लोगों के क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आपके क्या एक्सपेक्ट से। जैसे I have a friend who shifted from school who shifted to Amsterdam right after his marriage because he got married and then उनको दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल गई एम्स्टरडेम में, तो वो चले गए। सेम विद अ फ्रेंड हु डिसाइडेड टू मूव टू लंदन, अगेन दे गॉट मैरिड, दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ पे कोई मेजर ओपन आइटम नहीं था करने के लिए, तो वो चले गए। तो वो हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट हो सकता है मैं भी चला जाऊँ, मतलब लाइक थोड़े टाइम बाद, लाइक आई माइट गो बिकॉज कुछ चीजें होंगी ऐसी जिनकी वजह से इतना इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं होगी या रिस्क टेकिंग एपेटाइट टेम्परेली बढ़ जाएगी, तो फिर मैं चला जाऊंगा। अभी थोड़ा रिस्क टेकिंग एपेटाइट भी ऐसी चीज होती है जो हर वक्त हाई पे नहीं होती, मतलब ना ऐसे, तो जब वो ऐसे पॉइंट पे आए, जब वो हाई पे है, तो उसको लेवरेज कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर ना रिग्रेट नहीं होता कि अच्छा मैंने उस टाइम पे रिस्क नहीं लिया। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप ये समझ लो ना कि आपके एटलीस्ट दिस डेकेड ऑफ योर्स विच इज गोइंग टू बी योर 20s is actually about finding that thing that you can do sustainably, क्योंकि मतलब जितना जितना डिसएरे और जितना केओस आप इस डेकेड में अपने लिए अफोर्ड कर सकते हो ना, उतना आप आगे के डेकेड्स में मुश्किल होता है। तो इसलिए आप यू वांट टू गेट टू अ प्लेस वेयर यू कैन री इन्वेंट योर सेल्फ एंड फाइंड दैट पीस विद वट एवर यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग इट, हाउ यू आर परफॉर्मिंग, तो वो सारी चीजों के साथ वर्किंग मैकेनिज्म्स बनाने का गेम होता है बेसिकली। तो अगर आप वो चीज अपने आप समझ लो और उनको आप ये समझ लो कि आपको, जब तक आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ उस चीज के साथ जो आप कर रहे हो और जैसे कर रहे हो, तब तक आपको री इन्वेंट करते रहना है। तो फिर ना वो डर चला जाता है कि अरे क्या होगा, है ना। वो चीज एटलीस्ट जो है समथिंग विच इज वेरी वैल्यूएबल फॉर पीपल हु हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम स्टडीइंग फॉर यूपीएससी, कि वो डर नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, राइट। यू शुड नॉट हैव दैट फियर बिकॉज इट इज अबाउट दिस ओनली, राइट, इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। मतलब लाइक ऐसे ऑब्जेक्टिव स्केल पे कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं होता, मतलब ना कोई किसी के आगे पीछे नहीं होता, यू हैव टू फाइंड योर वे। तो उस चीज को लेके, और ये फिलॉसफी नहीं है भाई, ये हार्ड फैक्ट्स है, मतलब ना कि मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो कंफर्टेबल लगे ना करना, वो ढूंढने के लिए अगर बार बार रिस्क टेकिंग डिसीजन लेना पड़े, तो उस चीज को लेना का ही गेम है 20s का जो डेकेड है आपका। तो उस चीज को कर लो आप, मतलब ना, तो उस चीज से डरो मत कि अरे री इन्वेंट करना पड़ेगा, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो चीज अगर आप वो डर छोड़ दोगे ना, तो आपको ईजी होगा थोड़ा सा। जो चीज इजी बिल्कुल नहीं होगी, जिसका कोई बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है, वो चीज ये है कि वो आपको वो यूपीएससी वाला माइंडसेट ड्रॉप करके आपको नौकरी करने के माइंडसेट में आना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल चीज है।
सबसे ज्यादा स्ट्रगल मैंने उसी चीज पे किया है, क्योंकि जब मैं यूपीएससी से निकल के और जॉब करना शुरू किया था तो मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, बट विदाउट रियलाइजिंग आई कैरीड अ लॉट ऑफ ईगो एंड एंग्स्ट इनटू दोज दैट वर्क विच आई वाज डूइंग एंड हाउ आई वाज डूइंग इट। ये फ्री मार्केट की प्रॉब्लम है कि वो आपको अपने आप कैप कर देगी अगर आप अपने आप को कैप कर रहे हो तो। एंड ईगो को बीच में लेके आना इज लाइक क्रिएटिंग अ कैप ऑन योर ओन कैपेबिलिटीज। तो वो चीज को आपको you have to be very consistent when it comes to discarding those attributes and those qualities. In fact वही चीज सबसे बड़ा चैलेंज होता है ex aspirants moving into careers which did not work out, which they had not originally planned। मतलब प्लान बी टू सी पे जब जाते हैं लोग तो प्लान तो बी टू सी पे चला जाता है ए से, बट माइंडसेट ए से बी टू सी पे लेके जाने में जितना टाइम लगेगा और जितना एफर्ट लगेगा वो बहुत लगाना पड़ता है। मतलब वो इसे बिना लगाए नहीं जाता। You can explore entrepreneurship also if you have relevant backing for that, and if you feel that there is an idea and you feel that there is something which can be explored and which you have enough backing, capital backing, financial backing to experiment with that. Like some people have generational wealth which their families are ready to put behind them if they do not end up going ahead with UPSC, then you can leverage that. Because if you are not of that, if you're not of that mindset that you want to do a job, then don't force yourself to do a job. If you want, you can explore entrepreneurship. हाँ बस यही है कि you and people who you are depending upon for that will need to be along the same page। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो and then you are still trying to justify है कि यार मैं एग्जाम दे रहा हूँ, क्लियर नहीं हो रहा हर साल। वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो वो 12th फेल देखी आपने या नहीं देखी, बट वो उसमें वो कैरेक्टर होता है ना पांडे, वैसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि कर तो रहा हूँ, मतलब वही वाला वो वाला चीज नहीं होना चाहिए। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको जॉब नहीं करनी, बट देन आई थिंक इन जनरल इट्स अ रिस्कियर प्रोपोजिशन दैट डूइंग अ जॉब। मतलब तो वो ऐसा नहीं है कि वो आसान होता है, वो पीचेस एंड क्रीम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। वो जॉब से तो कई गुना मुश्किल होता है। इनफैक्ट जॉब सबसे इजी चीज होती है करनी आउट ऑफ यूपीएससी प्रेप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब। जॉब इज द इजीएस्ट टू डू, बट देन जॉब के लिए एक सर्टन माइंडसेट और एक सर्टन तरीके का बिहेवियरल वो पैटर्न चाहिए होता है जो टू सक्सीड एंड टू परफॉर्म वेल एट द जॉब, जो फिर बाकी दोनों में नहीं चाहिए होता। तो वो बाकी दोनों में बहुत अलग तरीके का पैटर्न चाहिए होता है। जैसे जॉब में ग्रिट का एक लिमिटेड स्कोप होता है। ग्रिट मतलब परसिस्टेंस, परसिवियरेंस जो होती है। लाइक ग्रिट एज इन परसिस्टेंस बेसिकली, नॉट परसिवियरेंस। परसिवियरेंस तो हार्ड वर्क हो गया। ग्रिट का एक लिमिटेड रोल होता है। ग्रिट का रोल इस चीज में है कि मतलब आप अपने आउटकम्स डिलीवर करते रहो कंसिस्टेंटली। ग्रेड का रोल आपका यूपीएससी में बहुत ज्यादा ग्रेड का रोल होता है, क्योंकि आपको बार बार फेलियर्स, जो कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द कॉल में वर्ड को बैन किया, नॉट सक्सेस से डील करना पड़ता है। और फिर वो इतने टाइम बाद भी आता है और एकदम से आ जाता है, आपको कोई रीजन भी नहीं मिलता। तो वहाँ ग्रेड का बहुत बड़ा रोल है। एंटरप्रेन्योरशिप में भी ग्रेड का बहुत बड़ा रोल है। आप जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करोगे, कोई नहीं खरीदेगा, मतलब नो वंस गोना बाय। तो इसलिए उसका बहुत बड़ा रोल है ग्रेड का। जॉब में ग्रेड का सबसे कम रोल होता है, बट जॉब में ना करेक्टनेस का बहुत ज्यादा रोल होता है। मतलब आपका यूपीएससी में भी और इसमें भी, अगर अगेन यूपीएससी में भी एज एन ऑफिसर आपको रूल्स फॉलो करने हैं, बट अगर आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप उनकी करेक्टनेस को सिचुएशनली जज कर सकते, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप में करेक्टनेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। मतलब ना करेक्टनेस का कॉन्सेप्ट आपको एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है, जब आपको चीज या सक्सीड हो जाती है नहीं होती। यूपीएससी में, इसमें जॉब में करेक्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आपको एक सेटिंग में जाके एक पर्टिकुलर रोल में फिट होके आपको उस चीज को देना है जो उस रोल से आप लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन है। तो वो एक आपको, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट ऑन दैट लाइंस। तो हर चॉइस के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, अपने चैलेंजेस हैं, अपने रिवॉर्ड्स हैं। आपको देखना है कि आपको करना क्या है, एंड आपको 2-3 बार तो एक्सपेरिमेंट करने का लेवरेज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको 3 री इन्वेंशंस बताए अभी, तो वो तीनों री इन्वेंशंस यही तो थे, यूपीएससी, जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप। आई वेंट यूपीएससी टू जॉब टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड बैक टू जॉब। तो 4 हो गया टेक्निकली, मतलब इफेक्टिवली। मेरा भी कुछ तो similar ये 4 बार मैंने स्विच किया है। तो I wouldn't say any of those switches were easy. They were very challenging, but it was fun. But I wanted to talk a little more about the software development as a profession. तो उसमें Yeah. अगर कोई यूपीएससी के बाद अगर सोच रहा है, तो क्या प्री रिक्विजिट्स आपको लगता है कि होने चाहिए? वो स्किल कैसे डेवलप कर सकता है बंदा? Yeah, so see, software development mein now there is like a huge volume of resources and support on how you can build your skills and how you can get started. There are platforms like there are like edtech companies like Scalar, like this. There used to be coding ninjas and all earlier. हमारे कॉलेज के ही लोग हैं उसमें भी Even इन्वॉल्व, काफी Rockstar. सारे।
हाँ, वो लोग ही शायद कोडिंग में भी है। कोडिंग ब्लॉक्स, हाँ। कोडिंग ब्लॉक्स बंद हो गया अब, आई थिंक देयर, बट देयर आर मेनी alternatives. There's Scalar. There are obviously like more more like older sites which used to be the reference of people during our time, Geeks for Geeks and all. अभी लीड कोड आ गया है, लीड कोड पे बहुत लोग ग्राइंड करते हैं डीएसए प्रॉब्लम्स। तो लाइक अभी इसमें घुसना कैसे है, इसका बहुत मटेरियल और बहुत कंटेंट अवेलेबल है, स्टार्टर पैक्स वगैरह है। इनफैक्ट आई वुड से दैट देयर इज एक्चुअली लॉट मोर कंटेंट देन लाइक, मतलब उसमें से यूजफुल चीज भी निकालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट भी हो गया है मतलब इन चीजों में ना। बट देन व्हेन यू आर स्टार्टिंग, इट डजंट रियली हर्ट, एंड देन यू कैन रीच आउट टू पीपल हु हैव डन इट बिफोर टू हेल्प यू एंड गाइड यू विद द राइट चॉइसेस with respect to that. So now you can see software engineering will always be that field which anyone can get into, right? It's just about understanding how things work and क्या वो how इंजीनियर software, इंजीनियर एटलीस्ट होना चाहिए? क्या क्या नहीं एक so इंजीनियर भी स्किल से डेवलप करके घुस सकता है? see, software engineering is mostly about math, logic, and language, right? So it's about these things, right? So इसलिए, and math, logic, and language is not something which just an engineer can deal with, right? तो वो चीज है, मतलब अगेन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेगा, टेकअप करेगा और इंजीनियर नहीं होगा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हुए इंजीनियर बन जाएगा, बिकॉज इंजीनियरिंग इज अ माइंडसेट, राइट? इंजीनियरिंग इज अ problem solving mindset. You find problems, you try to figure out what approaches you can take to solve them, you try those approaches and you solve that problem, right? It's basically कि अच्छा मेरे पास ये सिनेरियो है, इसमें मुझे ये करना है, मैं ये कैसे करूंगा, right? वो है ना इंजीनियरिंग। तो वो जो जो इंसान नहीं कर रहा, नहीं है इंजीनियर बाय प्रोफेशन, वो भी इंजीनियर बन जाएंगे जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना शुरू करेगा। तो इसलिए वो चीज तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि यू जस्ट नीड टू बी एन इंजीनियर टू परसू or to start a career in software engineering. In fact, there are a lot of example of people who are not engineers. बाहर ज़्यादा होते हैं, मतलब in Europe and in US and all, there are people who are doing art and all, and then they find engineering, software engineering interesting. They want to learn how to write code, and they start writing code, right? And the fact that they are into art gives them an extra edge, which other engineers don't really have. Just like for me, my UPSC preparation and my overall awareness of how the world works always gives me an extra edge over other developers, because I can understand how businesses work and scale better, which other developers don't have access to that information, right? So, but again, anyone can get into this. And there are a lot of resources available on how you can get into them. If you want help to find the right resources and to find what to do and how to spend your time, seek a mentor. There are also platforms for that now, where people can go ahead and give mentorship to people who are starting their careers or at a certain stage of their careers. They're there. I have not signed up to any of them, but I keep getting input requests from people on LinkedIn, and they keep asking me general questions and all. Sometimes I answer them. So yeah, you can, if you want to find out what, have a very dedicated plan which is customized to you, find a mentor who can understand your requirements and deliver that. तो यहाँ पे सेल्फ स्टार्टर किट ना बहुत बढ़िया अवेलेबल है। मैं ये नहीं बोलूंगा लेकिन कि जस्ट बिकॉज एनीवन कैन डू इट, एवरीवन शुड डू इट, बिकॉज there is a difference between getting started and getting into this career and then actually performing well and becoming a good software engineer. जो second part है ना, वो चीज में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लाइक इट्स वो, मतलब बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाता है बिटवीन बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड बीइंग अ हाई परफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु कैन डिलीवर वेल अक्रॉस सिनेरियोज एंड अक्रॉस सेटिंग्स। क्योंकि मतलब उसमें ना ऐसा नहीं होता that everyone who becomes a software engineer becomes a successful software engineer, so you have to figure that out, yeah, right? So वो चीज होती है। if you, some people, if they're not able to get into that zone where they can become successful at becoming a software engineer, they do an MBA and they choose to go for product management and stuff, right? So वो चीज हो जाती है, which is an okay career path to also take, right? And देन अभी काफी सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से स्टार्ट करके डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या AI/ML वगैरह में जाने लगे हैं। Although all of those disciplines actually also need you to be a decent engineer and not someone who is just writing scrappy, doing software development scrappily, but then you will be able to reach that quality bar, उतना आप कर लोगे। अगेन बहुत फर्क होता है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते करते आप सीनियर इंजीनियर की तरह जो है बहुत ही बड़ा एक कुछ अपग्रेड कर रहे हो, वर्सेस कि आपने 2 साल के लायक, 2 साल 3 साल के लायक जितनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी थी वो कर ली, और अब आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो उसमें, या फिर अब आप डेटा साइंस कर रहे हो, उसमें फर्क है। तो ये मैं जरूर बोलूंगा कि इट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर स्टार्ट करने का सोचोगे तो आपके लिए गुड स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आपके पास स्टार्टर किट भी है, बात करें तो स्टार्टर किट भी है। पे स्केल आपको एंट्री लेवल पे नॉन टेक जॉब से फर्क मिलेगा, बट इतना फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि एंट्री लेवल रोल्स पे स्केल उतना ही होता है जितना होता है। सीनियोरिटी के साथ
आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप करते हो तो आपको जस्ट विद अ बैचलर जो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, वो कॉम्पेंसेशन आपको लेने के लिए नॉन टेक रोल्स में या अलाइड रोल्स में आपको लेने के लिए आपको मास्टर्स करना पड़ेगा यूजुअली। सो सॉफ्टवेयर, क्योंकि कोर टेक्निकल फील्ड है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो अगर आपके पास बैचलर है एंड आप काम करते रहते हो एंड यू आर प्रूवन, हैव अ प्रूवन गुड ट्रैक रिकॉर्ड, देन यू डोंट नीड दैट एक्स्ट्रा मास्टर्स डिग्री टू हैव दैट सेम कॉम्प और दैट सेम सीनियोरिटी। आप उस बैचलर्स डिग्री के साथ भी ग्रो कर जाओगे रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू डू अ मास्टर्स और नॉट। अगर आपसे नहीं हो पा रहा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आपको लग रहा है कि आपको उसका कोई अलाइड प्रोफेशन सीख करना है जिसमें आप बेटर सूटेड हो, तो आप उसको सीख करो 2 साल 3 साल 4 साल वाली टाइम पे, जब आपका वर्क एक्स हो गया है एंड आपको क्लियर है कि आपको कौन से अलाइड प्रोफेशन में जाना है, आपको डेटा साइंस में जाने के लिए मास्टर्स करना है या आपको प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाने के लिए एमबीए करना है, तब आप सीख कर लो जो आपको करना है। एंड देन आपको, अगर आपको सीनियर इंजीनियर बन के वो कॉम्प नहीं मिलेगा तो आपको प्रोडक्ट मैनेजर बन के मिल जाएगा। ऑब्वियसली टेक सेंटर्ड रोल्स में कॉम्प हायर है एज कंपेयर टू नॉन टेक रोल्स। अगेन दिस इज नॉट अ स्टेटिस्टिकल थिंग दैट आई एम सेइंग, बट कॉमन नॉलेज है ये, मतलब आई एम श्योर वी कैन फाइंड स्टैटिस्टिक्स फॉर दिस, तो दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस सेशन। तो वो चीज है, बट अगेन ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल रोल है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हर किसी को वो मिल जाएगा, या किसी को मिल भी जाएगा तो वो उतना सक्सेसफुल हो पाएगा उस चीज पे। क्योंकि जब अभी 2 साल पहले ना एक बहुत स्टार्टअप्स का बूम आया था कि बहुत सारे स्टार्टअप्स के रोल्स थे एंड उसमें बहुत कॉम्पेंसेशन इन्फ्लेटेड भी थे, बहुत सारे हाई कॉम्पेंसेशन थे। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था दैट इट्स अ गुड सीड करियर, तो इट्स गुड टू गेट स्टार्टेड। हाउएवर अभी थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है आज के टाइम में, क्योंकि अभी थोड़ा एंट्री लेवल रोल्स कम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, मार्केट डाउन है थोड़ा ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। बट ऐसा नहीं है कि आगे रोल्स नहीं क्रिएट होंगे, आएंगे रोल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अभी रिक्वायर्ड हैं इंडस्ट्री में और रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी आगे, तो ठीक ऐसा है नहीं ना, है सब कि डिजिटल हो रहा है तो वो सब हाँ, तो करनी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ प्रोफेशन तो फॉरवर्ड लुकिंग है इन टर्म्स ऑफ करियर ऑप्शन। तो बट इसमें भी स्टे करना और डिलीवर करते रहना और ग्रो करना और सक्सेसफुल होना बहुत चैलेंजिंग है, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेशन। हाँ, पर यहाँ पे मतलब वो क्या, वो होता है कि स्किल सेट हमेशा अपना बढ़ाते रहना पड़ेगा एक उम्र तक, क्या वो एक। बहुत, हाँ, दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि ये बिल्कुल कटिंग एज फील्ड है, मतलब यहाँ पे ना चीजें बिल्कुल चेंज हो जाती है, मतलब ना लैंडस्केप चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से कन्वेंशनल करियर्स से थोड़ा अलग है, क्योंकि कन्वेंशनल करियर्स में अगर देयर समवन जिसको 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है एंड देव बिन डिलीवरिंग वेल कंसिस्टेंटली एट multiple places, तो they will be put on a pedestal in whatever opportunity they seek, उनको लीडरशिप रोल में डाला जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये है कि आपने अगर जो है काम किया है 15-20 साल और आपने काम जो किया है वो रेलेवेंट नहीं है, अब यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है सामने वाले बंदे को आपके टाइप के प्रोफाइल की, तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं कि आपने क्या किया है, क्यों किया है। तो इवॉल्व है ना, वो इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। बहुत चैलेंजिंग रहता है कि आपको कंसिस्टेंटली आपको अपस्किल करते रहना पड़ता है। अभी जैसे मतलब द कंपनी आई एम वर्किंग फॉर राइट नाउ, दे आर वेरी strongly suggesting that everyone become an expert at AI, and people who are not showing enough initiative to become expert at AI use and to use it properly wherever there is a relevant use case, they are being let go। तो वो चीज हो रही है, and then companies are also downsizing क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा हायरिंग कर ली थी पहले, and then now they are not needing those roles, या उनको वो टीम्स नहीं चलानी। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट समझने वाली ये भी है कि सॉफ्टवेयर डिस्कार्ड बहुत होता है। आप कुछ, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लो आपने चॉकलेट बनाई या चिप्स बनाए, आपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करी, ऐसा नहीं होता ना कि आप एकदम से अपना प्रोडक्ट डिस्कार्ड कर देते हो, आप उसमें माइनर चेंजेस लाते हो, उसकी पैकेजिंग चेंज करते हो, उसकी ब्रांडिंग चेंज करते हो, शेप और साइज चेंज करते हो। इनफैक्ट जो प्रोडक्ट्स पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं जैसे डेयरी मिल्क वगैरह, इन सारी कोका चीजों में तो कोला। वो छोटे छोटे चेंज भी कर दोगे तो आपका एकदम से आपका जो है डाउन हो जाएगा, मतलब सेल्स वगैरह, इम्पैक्ट आपको पता भी नहीं है क्या इम्पैक्ट है। केस स्टडीज वगैरह भी हैं इस पे, पढ़ी हुई है मैंने 2-3 अपने फ्री टाइम में। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ना 90% कोड डिस्कार्ड होता है। आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे या तो वो डिस्कार्ड होगा, या वो चलेगा नहीं वैसे जैसे आपको चलाना है, या आपको उसका यूज नहीं होगा जैसे आपको करना है उसको, या फिर वो कोड ही आउटडेटेड हो जाएगा, बहुत सारी चीजें डिस्कार्ड होती हैं। तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ना आपकी ईगो और कम होनी चाहिए कि मैंने ये, और वो मुश्किल होता है क्योंकि आप क्रिएटिव चीज कर रहे हो, आपने कुछ एल्गोरिदम बनाया, आपने कोड लिखा, आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अपने तरीके से सॉल्व किया, 2 महीने 3 महीने बाद नोबडी केयर्स अबाउट इट, उसने 2-3 महीने में जो अपना काम करना था वो कर दिया, अब नाउ वी वांट टू डिलीवर सम अदर रिक्वायरमेंट एंड वी वांट टू मेक समथिंग एल्स। तो वो चीज चैलेंजिंग है और वो इतनी आसान नहीं होती हर किसी के लिए ना, करते रहना अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो वो चैलेंजिंग होता है। तो ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं फ्रॉम फ्रॉम कन्वेंशनल करियर्स। दूसरी एक चीज और इंपॉर्टेंट ये भी होती है कि कन्वेंशनल करियर्स जो मेरे को एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कोर स्ट्रेंथ लगती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिंस इट इज मैथ लॉजिक एंड लैंग्वेज, आप एक डिटर्मिनिस्टिक पॉइंट रीच कर सकते हो कि अच्छा, आपने जब बिल्कुल लो लेवल पे चले गए ना तो आपका येस और नो आ जाता है, बाइनरी आ जाता है।
कि अच्छा ये चीज ऐसे है तो मैं श्योर हूँ कि ऐसे है, ये और किसी तरीके से नहीं हो सकती क्योंकि मैंने सारी पॉसिबिलिटीज रूल आउट कर ली है। नॉन टेक्निकल करियर्स में ऐसा नहीं होता। आपकी कोई सेल्स पिच, आपका कोई ऑप्स का सिनेरियो, आपका कोई भी फाइनेंशियल सिनेरियो, मार्केट्स का अप्स एंड डाउन्स, कोई भी नॉन टेक रोल में आपको इतना लेवल ऑफ डिटर्मिनिज्म नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो डिटर्मिनिज्म अच्छे से सेट करना आता है और उसको कम्युनिकेट करना आता है सामने वाले इंसान को कि हाँ ये डिटर्मिनिस्टिकली सेट कर लिया है मैंने कि ये हो गया है, अब इसको आगे बढ़ सकते हैं, इसके आगे बढ़ सकते हैं, वो चीज़ें हैं। अगर किसी को लग रहा है कि टेक्निकल चीज़ को कम्युनिकेट करना आसान होता है नॉन टेक्निकल चीज़ को कम्युनिकेट करने से, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ को कम्युनिकेट करना एक्सपोनेंशियली ज़्यादा मुश्किल होता है नॉन टेक्निकल इनफैक्ट चीज़ आई को फील communicate। कि दी आप बोलते कुछ हो, दूसरा समझता कुछ है, बहुत इनफैक्ट होता है आई ऐसा। फील दी बेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड द मोस्ट पेड वंस आर जो एक्चुअली अपने कोड को सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाए किसी बहुत एफर्ट लगता है उस चीज में रोज, मतलब मैं तो अब आई एम नाउ अ सीनियर इंजीनियर, सो आई एम L5 रोल पे हूँ मैं इन अ company that has a global footprint, so I'm working with engineers across the globe, and I am a senior engineer now, so there is a decent level of responsibility and independence that I have at work, and उसका यही है कि मतलब it just takes a lot of effort to do it well every day। तो अच्छा आप कुछ नंबर्स दे सकते हो कि एक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर की एक रेंज क्या हो सकती है ओवर दी यार वो बहुत वेरिड है अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ प्लेस वेयर दे वर्क एंड द जहाँ पे वो इंडिया की स्टार्ट बात करते करें हैं। तो इंडिया की अगर बात करें तो सो यू विल फाइंड कॉम्पेंसेशंस पर फॉर एवरेज सॉफ्टवेयर। एवरेज वो रखेंगे हम ये नहीं। रेंज बताता हूँ, पहले मैक्स मिन बताता हूँ एंट्री लेवल का। मैक्स मिन मतलब ऐसा समझ लो कि मिन हो जाएगा आपका 6 और मैक्स हो जाएगा 30 एंट्री लेवल रोल पे। मतलब अगेन इसमें 30 वाला जो कॉम्प होगा वो बहुत ही बिग टेक या बहुत एस्टैब्लिश्ड टेक सॉफ्टवेयर कंपनी में होगा, जहाँ पे आपका बहुत सारा कंपोनेंट विल बी नॉट कैश। हाँ, तो मतलब इट विल बी बेसिक पे नहीं होगा वो ना, उसमें और चीजें होती हैं, परफॉर्मेंस बोनस होता है एंड आपका यूल हैव स्टॉक्स भी होते हैं बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में, तो इसलिए वो चीजें होती हैं, ईसॉप्स बोलते हैं जिसे। तो 6 to 30 मान लो एंट्री लेवल इंजीनियर का। मेरे पास कुछ आई हैव सम स्टडीज ऑन दिस आल्सो बिकॉज आई हैव सब्सक्राइब टू सम प्लेटफॉर्म्स टू सी कॉम्प्स वगैरह क्या रहती हैं। आई स्टे रेलेवेंट, वेरी अपडेटेड ऑन दिस। मेरे को इफ यू वांट आई कैन फॉरवर्ड यू दिस एंटायर दीज थिंग्स फॉर यू सेफ कीपिंग एंड यू कैन लिंक देम नेक्स्ट टू दिस वीडियो आल्सो कि लाइक इट विल बी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। अगेन एंट्री लेवल का ये होता है, देन अगेन विद years of experience growing you can expect higher raises, increments every year than a conventional non-tech role. Software, जैसे for example, I started as an entry level engineer 2 years late, right, because of UPSC, but then I got promoted very quickly because like I got promoted in 9 months and I got almost like a 35-40% raise when I got promoted because my workplace, like my management was clear कि यार ये बंदा एक लेवल ऊपर काम करने के लायक है, तो इससे एक लेवल ऊपर ही करवाते हैं ना, why unnecessarily get it done, एक लेवल नीचे क्यों रखें। तो कंपनी का भी ऐसा स्टेज था, कंपनी वाज गोइंग फ्रॉम MVP टू प्रोडक्ट मार्केट फिट, तो वो वाला स्टेज था कंपनी का। तो उसको चाहिए था कि जान पहचान वाला बंदा, नॉलेजेबल बंदा सीनियर पोजीशन पे आके डिलीवर करे, तो वो वहां पे सीनियर रोल मिला मेरे को। बट दैट वाज what you would find an SD2 in a big tech company। तो ये भी होता है ना कि जैसे मैं बहुत छोटे स्टार्टअप पे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब ये है कि बिग टेक में SD2, सो लेवल वही रहता है, आई मतलब L2 बेसिकली ना। बहुत जल्दी L2 पहुंच गया, फिर अगेन बहुत जल्दी L3 पहुंच गया, L4 पहुंच गया। सो आई गॉट लाइक आई रीच दैट थिंग दैट माई कैप इन द कंपनी वेर आई वॉज वर्किंग, उस वाली टाइप की कंपनी में जो रेंज हो सकती थी उसका कैप मैं पहुंच गया था 2.5-3 साल में ना। सो आई रीच दैट कैप बेसिकली। सो वहां से फिर देन आई स्विच्ड, आई स्टार्टेड माई ओन आई डिड माई ओन स्टार्टअप। मैं अपना स्टार्टअप करने का बंद किया तो आई बेसिकली ज्वाइंड एट द सेम लेवल विच वॉज एन SD3, बट आई ज्वाइंड एट एन इवन स्मॉलर कंपनी। सो आई टेक्निकली टुक अ पे लाइक आई टुक अ हिट ऑन माई कॉम्प, उतना नहीं मिला जब मैंने रिज्यूम किया अपने स्टार्टअप के बाद, बट आई स्टार्टेड ऑफ थोड़ा सा कम, but then again I grew very quickly because I was the senior engineer, the lead engineer in that company, so I got a couple of quick increments. And then like when I just did the last switch, then I got a huge increment. Like my last increment was 257%, so 2.57 times of my original salary. But that's again because of the the kind of role and the kind of job that I'm doing, where people can't even perform for 10 days। like अभी मतलब 10 दिन ऐसा भी होता है कि लोग आते हैं 10 दिन में निकल जाते हैं, मतलब कुछ लोग खुद भी निकल जाते हैं, कुछ लोग को निकाल दिया जाता है बिकॉज दे आर जस्ट नॉट द राइट फिट, एंड पुराने पुराने लोगों को निकाल दिया जा रहा है। बट आई हैव बीन हियर फॉर 10 months क्योंकि आई हैव बीन ग्राइंडिंग ऑल डे इन डे आउट। तो अगेन रोल भी सीनियर है, नाउ इट्स एन L5 रोल एंड एट अ कंपनी विच इज ग्लोबल। सो आई थिंक आई डिड वेल टू डिजर्व दैट 257% रेज, बट उसको सस्टेन करना बहुत चैलेंजिंग है और अभी जल्दी कुछ और नहीं मिलने वाला।
so that's there. So One yeah. last question, why do you think कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज बेटर देन यूपीएससी? मतलब क्या यहाँ पे लाइफ क्या अच्छी है एक अगर कोई यूपीएससी से कोई अफसर बनता है तो? यार प्राइवेसी और इंडिपेंडेंस बहुत है, मतलब लाइक मतलब there is definitely a lot more freedom. मतलब अगर if I would have been an officer, I mean, my life would actually have been completely different if I would have been an officer. You know, like, I mean, I would, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि उस लाइफ में I would not have been happy or I would not have been able to perform. कुछ आपके स्किल्स एंड इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको अक्रॉस डिफरेंट डोमेन सक्सेसफुल बना सकते हैं। मैं इंसान ही अलग होता वहां पे होता तो इसलिए मैं बिल्कुल अलग चीजों पे मैं वैल्यू अलग चीजों को करता, मेरा माइंडसेट अलग होता, मेरा थॉट प्रोसेस अलग होता, मेरा लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका अलग होता, तो फिर देन दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। ऑब्जेक्टिव लेवल्स पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बिल्कुल इंट्रोवर्टेड प्रोफेशन है, मतलब लाइक आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा ना लोगों से, अनलेस जितना आपका काम पे है उतना होगा, और उसके अलावा आपका कोई आगे पीछे नहीं होता, मतलब ना। तो मैं एक्सट्रोवर्टेड इंसान हूँ, तो मेरे को कभी कभार चैलेंजिंग लगता है वो कि कोई बात करने के लिए नहीं है यार, मतलब इन चीज़ों के बारे में। तो वो चीज़ है, कंप्लीटली इंट्रोवर्टेड प्रोफेशन है, बट फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बहुत है। क्रिएटिविटी लगाने का फ्रीडम भी बहुत है, इंडिपेंडेंस भी बहुत है, कि अगर मेरे को सॉल्व करना है प्रॉब्लम को तो मेरे पास रिलेटिव फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ हाउ आई वांट टू सॉल्व इट। जितना सीनियर होते जाते हैं उतना और ग्रो करती जाती है वो फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो भी है। हाँ, सपोर्ट कुछ नहीं है इन टर्म्स ऑफ पैसा, ठीक काम चल रहा है, घर बार सब चल जाता है, काम चल जाता है, अगर मतलब यूपीएससी के मुकाबले अगर ऐसा ज्यादा कम क्या ही होता है, मतलब सोचे तो ऐसा ज्यादा कम क्या ही होता है। तो हाँ, ये भी है। मैं नहीं बोलता ये, बट मेरे डैड को ये बोलना बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हें सारा पैसा अपनी ईमानदारी का मिलता है। तो वो चीज वो बोलते रहते हैं बार बार, मेरे दिमाग में नहीं आती वो चीज उतनी, क्योंकि मैं बेईमान हूं नहीं, तो फिर मतलब वहां पे भी होता तो बेईमानी नहीं कर रहा होता, चाहे पैसे कम मिल रहे होते हैं, तो इसलिए वो चीज है। और पैसे कम नहीं मिल रहे होते हैं और तो फिर जगह दूसरी में रह रहा होता, गुड़गांव में नहीं रह रहा होता, तो फिर इतने पैसे खर्च भी नहीं होते ना, मतलब तो घर भी मिल रहा होता, वो सारे पर्क्स जिनके बारे में सोचते हैं हम, यूपीएससी के बारे में सोचते हुए वो सब। तो आई थिंक यूपीएससी आपका बहुत सारी चीजें मैनेज कर लेता है आपकी लाइफ की। जस्ट बीइंग दैट ऑफिसर, देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स मैनेज्ड फॉर यू बिकॉज यू आर दैट ऑफिसर। बहुत सारी चीजें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं जो यूपीएससी टाइप के करियर में जो ऑफिसर होके मेरा जो सिस्टम होता है वो मैनेज कर लेता, बट उनको मैनेज करने में भी एक अपना मजा है, मतलब क्योंकि उसको आप मैनेज करते हो तो आप उनको अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मेरे को जितने बड़े घर में रहना है वो मेरी चॉइस है, मेरे को जिस घर में रहना है वो मेरी चॉइस है, मेरे को जो गाड़ी खरीदनी है वो मेरी चॉइस है, मेरे को जो गाड़ी चलानी है वो मेरी चॉइस है, मेरे को घर के बाहर निकलना है वो मेरी चॉइस है, नहीं निकलना है वो मेरी चॉइस है। सो चॉइस और इंडिपेंडेंस और फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, सरदर्दी भी ज़्यादा है, सपोर्ट कम है, और इंटरएक्टिविटी और एक्सट्रोवर्जन भी लिमिटेड है काम में, बट वो अपने अगेन कोई भी चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, तो वैसे ही है। बट ये चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि इन लाइंस पे ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, यहाँ पे ये चीज़ें बुरी हैं, वहाँ पे ये चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ पे इन चीज़ों में चैलेंजेस हो सकते हैं। अच्छा बुरा जिंदगी में कुछ नहीं होता, मतलब ना दुनिया में कुछ ऐसा वो सोचना नहीं चाहिए उस डायरेक्शन में कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। फ्रेडरिक नीत्शे की बहुत अच्छी किताब है बियॉन्ड गुड एंड इविल नाम की, जो इसी चीज़ के बारे में उसने लिखी है। बहुत पढ़ा मैंने अपना, जब मैंने अपना यूपीएससी छोड़ने के बाद नौकरी वोकरी करनी शुरू करी ना, तो मैंने बहुत रीडिंग करी, फिलोसफी बहुत पढ़ी मैंने उसके बाद, क्योंकि ये सारे जो शेनानिगन्स मेरे थे ना, मेरा ईगो, मेरा एंगर मैनेजमेंट, वो सारी चीजें में बहुत हेल्प किया मेरे को ना फिलोसफी मैंने ने, अभी तो मेरे पढ़ना को। चालू किया है, मतलब मेरा ऑप्शनल तो एंथ्रो था। हाँ उस दिन सागर सर आए, उनकी फिलोसफी थी तो हम लोगों ने काफी देर बात करी, वो एक किताब दे के गए। हाँ फिर अभी हाँ। 1 महीने से मैंने भी चालू किया है। मैं एकदम पीछे से वो प्लेटो अरिस्टोटल से लेके एकदम पहले हिस्टोरिक उसका समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब सबका पढ़ा मैंने, सबका एक एक लाइन सब। पैक कर रहा हूँ मैं। क्या इंडियन फिलोसफी में भी थोड़ा ज्यादा वेदांत बहुत मैंने पढ़ा वेदांत वो काफी सारा, काफी। मुझे पढ़ने मेरे का। शेल्फ में अभी उपनिषद पढ़े हुए हैं वैसे, मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ बीच बीच में, वो ऐसी किताब है जो आप एंड टू एंड नहीं पढ़ सकते, बट बीच बीच में उसको स्किम करना बहुत अच्छा होता है। बट मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के पढ़ी है ये चीजें, मतलब नहीं 2-2 बजे तक काम खत्म करके फिर 2 बजे से 4 बजे ये पढ़ के फिर अगले दिन सुबह फिर काम करके, वैसे वैसे वाला भी किया है। तो अपना माइंड और बॉडी को पुश करने से नहीं हेजिटेट करना चाहिए इंसान को, मतलब रिस्क टेकिंग सिर्फ करियर में भी नहीं होती, एक अपने लाइफ में भी होती है जो आप करते हो। तो वन शुड नॉट बी वन शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ पुशिंग लिमिट्स, राइट। वो क्योंकि आप पुश नहीं करोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि क्या है, राइट। तो वो चीज़ करनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट सजेस्टिंग कि कोई अपने आप को रिस्क में डाले या कोई अपनी हेल्थ को इम्पैक्ट करे, बट थोड़ा थोड़ा अपने आप को नच करना चाहिए टुवर्ड्स पुशिंग योरसेल्फ, क्योंकि आप अपने आप को पुश नहीं करोगे तो फिर आप सीख क्या कर रहे हो, राइट। एंड वो सब चीजें पढ़ के आई वो इट रियली हेल्प मी लेट गो ऑफ दैट एंग्स्ट व्हिच आई वाज कैरिंग about not clearing the exam and being a so-called failure at the exam. We end with the word which we started at. So
And it's a big cross. There is nothing called a failure or a success. There is nothing called wrong and right. There is no career path which is good or bad in isolation, or which is only good or which is only bad. Employment is a two-way street, and everything else is also the same in your life. So just enjoy yourself, man, like, and ensure that your 20s are spent properly finding out for yourself who you are, what you like, what you do well, how you do it, and just building yourself up to that level. That's all. Okay, thank you so much for doing Yeah, this. it was a pleasure. I think we took a lot of time, but अच्छा रहा. But it didn't feel कितना टाइम हो गया. मैंने अभी देखा टाइम 11:30 हो गए. चलो ठीक So है. post process कर लेना इस वीडियो को. हाँ You can post अभी this एडिट video. वगैरह करूंगा अच्छे से. I can send you some resources which will be helpful as like नीचे कैप्शन डालते हैं तो उसके लिए अच्छा रहेगा, है ना? मैं अगर आपको लिंक्डइन again that's your call, जहाँ पे भी ठीक है. नहीं डालना है हाँ. मुझे. आपका लिंक्डइन भी डाल सकता हूँ उधर. हाँ प्लीज डाल देना. Go ahead. हाँ. ठीक है. अगर कोई देखे कहीं कनेक्ट करना चाहे. Go ahead. Not an issue. ठीक है. थैंक यू सो मच. दोबारा थैंक यू फॉर योर टाइम. हाँ बात करेंगे. वैसे भी रीच आउट कर लेना एक बार हाँ अगर कुछ बात ठीक है है. ना. ठीक. चीयर्स. बाय बाय. थैंक यू. बाय.